ठीक लिखा, अब ठीक को नहीं, अब कॉपी करोगे. ओके मैम, am I audible? Yes, ma'am, Someone you is are. writing, voice is not clear. Yes, better the problem may be from your side. Okay, first is three properties of water. It is not solid, liquid, gas, but property may first property you can write कि water exists in three states: solid, liquid, and gas. But जो आप लिख रहे हो आंसर solid, liquid, gas, these are the three states of water, not the three properties of water. The correct answer is written by Neil. It is colorless. Pure water is colorless. उसका कोई color नहीं होता, and it is odorless. Clear? It is odorless means उसकी कोई भी smell नहीं होती. Not either good or bad. It has no smell. And third is it is tasteless. Pure water is tasteless. उसका कोई taste भी नहीं होता. Clear? Sometimes हम कहते हैं ना पानी टेस्टी नहीं है. The taste is due to the salts dissolved in it. Otherwise उसका pure water का कोई भी taste नहीं होता. Can you write one more property of water? एक और property आप लिख सकते हो water की, that is not in your book, but you may know it. Yes, it is. Fourth next one is it is transparent. Pure water is transparent and it allows light to pass through it. You can write this also. Clear? Now go to the second question. Any two soluble impurities present in water? Yes, now you are writing it is transparent. Good. Soluble impurities. Soluble means which dissolve in water. Salt and sugar. Very good. This you know. Clear? And name two methods to remove soluble impurities. There are different methods to remove the impurities. Now, first of all, you have to write two methods which are used to remove soluble impurities. Now it's okay, beta. Loading and boiling. Boiling will not remove all the soluble impurities. If mud is there, so you cannot, if salt is there, so you cannot remove by boiling it. Loading, no. Loading is used for insoluble impurities. Yes, this is Goldie Basra के name से जो है, this is good answer. Evaporation and distillation. Okay, sedimentation is not the correct answer, and distillation के spelling wrong है बेटा. Kaushik. Yes, chlorination and boiling is not good. Correct answer. Chlorination only kills the germs. Boiling also. They do not remove all the soluble impurities. So correct answer is evaporation and distillation. Clear? Now see, answer first. Pure water is tasteless, colorless, and odorless. And two soluble impurities are salt and sugar. And two methods to remove soluble impurities. This you have to keep in mind. Either we are talking about soluble impurities or insoluble impurities. दोनों के methods different हैं. Okay? Only impurities word देख के आपको कोई भी method नहीं लिखना. You have to look for soluble or insoluble. किसकी आप बात कर रहे हो? So when we are talking about soluble impurities, so it is evaporation and distillation. Now name this process. It is evaporation. Okay, it's written over there. This is evaporation. And what's going on? They have taken mixture of salt and water in a container. This you can do at home also. आप पानी में थोड़ा सा नमक घोल के you have to put it in a कटोरी and you can heat it until all the water gets evaporated. आप देख रहे हो ना पानी गर्म हो रहा है, मिक्सचर है वो सॉल्ट और वाटर का, और water gets evaporated, it get vaporized and vapors go to the air. Vapor go and they get mixed in the air. दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. वाटर उसकी स्टीम बन जाती है और वो हवा में चला जाता है. एंड सॉल्ट विल नॉट गो एनीवेयर, इट विल रिमेन इन द डिश जो आपने, इट विल रिमेन इन द कंटेनर जो आपने
कटोरी रखी है वो उसी में रहेगा सॉल्ट. दिस वे यू कैन separate salt from water. But can we collect the water which is going into the air? जो ऊपर evaporation हो रही है, vapor में change हो रहा है water. अगर हम इसको vapors को collect कर लें, ठंडा कर लें, तो we call it distillation. Clear? अब इस जो process है evaporation का, this is also used when we get salt from the sea water. सी वाटर में वो शैलो पेन्स में वो पानी को कलेक्ट करके रख देते हैं सी वाटर को. ड्यू टू द हीट ऑफ द सन वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, पानी उड़ जाता है, लिविंग बिहाइंड द सॉल्ट. बट इफ वी कलेक्ट दीज वेपर्स, ओके, दीज वेपर्स आर प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. जब हम ठंडा करेंगे वेपर्स को तो दैट विल बी डिस्टिलेशन, दिस प्रोसेस. ओके, जैसे इवेपोरेशन हो रही थी अभी, तो इसमें क्या है, वन कोनिकल फ्लास्क इज देयर, राउंड बॉटम फ्लास्क इज देयर. इन राउंड बॉटम फ्लास्क इम्प्योर वाटर इज टेकन. चाहे इसमें मड मिक्स्ड हो, चाहे इसमें कुछ भी मिक्स्ड हो, इम्प्योर वाटर इज टेकन. इवन सॉल्ट्स मिक्स्ड हो तो सॉल्ट्स विल रिमेन इन दिस राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसके नीचे वो बर्नर चल रहा है. राउंड वाटर, जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें इम्प्योर वाटर है एंड वाटर विल गेट्स एवापोरेटेड. जो ऊपर को ग्रीन कलर के एरो जा रहे हैं, दे शोज दैट कि वाटर स्टीम में चेंज हो रहा है. स्टीम इज गोइंग अप इनटू, it's taken through the condenser into the conical flask kept at the other side. जो वो एक और ट्यूब है, ट्यूब के राउंड क्या है, कंडेंसर, जिसमें से वो ऊपर से कोल्ड वाटर के लिए इनलेट है, ऊपर से कोल्ड वाटर एंटर होता है. इट मूव्स अराउंड दिस ट्यूब एंड इट इज टेकन आउट थ्रू द कोल्ड वाटर आउटलेट. ऊपर से ठंडा पानी जा रहा है, वो सर्कुलेट हो रहा है बीच में, तो वो स्टीम को ठंडा कर रहा है. ओके, बिकॉज वो स्टीम की जो पाइप, ब्रिक सी पाइप है ना, वो स्टीम लेके जा रही है दूसरी साइड को. उसके अराउंड जब कोल्ड वाटर होता है तो स्टीम क्या होती है, वो कंडेंस हो जाती है. कंडेंस मीन्स इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर, सॉरी, वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉप्स. water vapor, when they change into water drops, so we are collecting these water drops into another container, conical flask पड़ी है. This is called distilled water and it is the purest form of water. Okay, this water is used, if we don't use it for drinking. Okay, आपकी बुक में लिखा है कि ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करने के लिए कुछ उसमें भी डिस्टिलेशन लिखा हुआ है, बट वी डोंट यूज इट फॉर ड्रिंकिंग. इट इज यूज्ड फॉर सम अदर पर्पसेस. राइट डाउन फॉर व्हाट वी कैन यूज दिस. Yes, write down two uses of this distilled water. Very good, bathing. बेटा थिंक अबाउट समथिंग. जो मैं वीडियो भेजती हूँ उसको देख लिया करो एटलीस्ट. डिस्टिल्ड वाटर इज यूज्ड फॉर, माय गॉड, I think somebody is muted, Param ma'am. I am actually having some issues in my network today, so I can't even see everyone in the class. Param ma'am, you are muted. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, better you must know कि distilled water is the purest water. Neil, very good student. Again, you are muted, ma'am. And Pratibha ma'am, please, I'm sorry, but I can't see anyone doing it because... No problem, ma'am.
Yes, beta, it is used to make medicines and it is used to make injections where pure water is used, car batteries mix. Clear? This water is used to make medicines and injections, not for washing and watering the plants. सुना करो जब टीचर पढ़ाते हैं और जब वीडियो भेजते हैं देख लिया करो उनको. क्लियर? Next, these are a few methods. First is boiling. Second में this is the filter, and third the chlorine is added. Okay, all these are the methods used for what? Okay, you have to write for what purpose we use all these methods. Why do we boil water? Why do we filter water? Why chlorine is added? Yes, beta, purification of water for drinking. Okay, like अभी हमने distillation की है, तो that was for the purpose of water, getting water which is used for making medicines and injections, car batteries. These are the methods which are used for making, to kill the germs, okay, which makes the water pure, which is used for drinking. Clear? So these are the impure, when we boil water for 10 minutes at least, then all the germs are killed. And water filters are used, ROs are used, they are common at home, in our homes. And this is also one of the most common method these days to purify the drinking water. And chlorine, to some extent we can use chlorine. Okay, so chlorine is good when rainy season is there. So chlorine is, most of the time chlorine is added to make the water pure. Okay, because chlorine kill the germs, it is used to kill the bacteria. Clear? So next, this shows one property of the air. You have to tell what does this activity show. First of all, write the material used in this activity. Which material is used? You can look at. Yes, balloon and one balance. This is made by wooden sticks. Okay, balloons, and very good. This shows that air has weight. Very good, class. Two balloons are taken. Okay, they are of equal size, equal amount of air is filled. Okay, and we have to stick to the both sides of the balance. When we prick one of the balloon, so you will see what you are looking in the second pick. Okay, so the balloon which is having air, okay, it weighs towards that side. Okay, this shows that air has weight. This activity shows that air has weight. When you prick one of the balloons, तो balance with air weighs more. जिस साइड पे balloon में air है, it will weigh more. Yes, बेटा. मैम आपकी आवाज में डबलिंग आ रही है मैम, फिर ठीक होती है मैम, फिर से डबलिंग आनी शुरू हो जाती है. Yashu, I don't think there is any doubling in maths voice, bete. आप maybe कि you are using two devices. Okay, it may be from your side. Clear? Now I'm going to show you another activity. For this, you have to tell me which material is used and what's going on. Okay, first you have to look at this activity, then you have to write down first what material is used. Yes, write down the material used in this activity. Yes, glass, water and tub. Very good. Okay, and what does this activity show? For what purpose I have done this activity? Yes, it's good. Tub, water and glass is used. And what does this activity show? क्या show करती है ये activity?
Air occupies space. Very good. Okay, this activity shows that air occupies space. So for this activity, what you have to do, you have to take one glass like this, then turn it upside down. इसको ऊपर करो and try to press it in the water. You will not be able to press, but when you tilt it, air comes out and water goes in. Otherwise, water will not enter the glass. This shows that air occupies space. क्योंकि पहले already glass जो air से filled है तो water अंदर नहीं जा रहा. But when you tilt the glass, थोड़ा सा उसको टेढ़ा करोगे तो water will enter and air will come out in the form of bubbles. Clear? This shows that air occupies space. Clear? So you must know observation means glass does not get inserted into water, and conclusion means result क्या activity का result क्या है? Air occupies space. Now look another activity, and first of all observe it. Yes. Yes, now, yes, write down, first of all, write down material used for this activity. Is candle, is glass, and matchbox is also required. Okay, candle, glass, and matchbox. Very good. And what does this activity show? Air is needed for burning. Very good, class. Air is needed for burning. Now look at this. How we will conduct this. Take a candle. Okay, light it with the help of a matchbox. It's very easy to write. Okay, science is very easy subject when you uh, uh, look at it again. You have to take a candle, light it with the help of a matchbox, and cover it with the help of a glass and observe. अब आपकी observation क्या होगी? Yes, candle gets extinguished. आग बुझ जाती है. And after a few minutes. Why is it so? Because air present in the glass, oxygen present in the glass is used by the candle for burning. When no more oxygen is left in the glass, candle will get extinguished. So you can say air is used for burning, or you can say oxygen is used for burning. Clear? So both ways you can write. When no more oxygen is left in the glass, candle will get extinguished. Okay. So on covering the candle with glass, candle gets extinguished. Yes ma'am, we have to send. बेटा मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में कि you have to send this activity to me. Only Astik has sent the activities. उसने within 5 minutes मुझे सभी एक्टिविटीज भेज दी एंड नो वन एल्स, और किसी ने नहीं भेजी. क्लियर? एंड यू हैव टू कंडक्ट दीज एक्टिविटीज एट होम. आप अपने घर पे ये आप ट्राई कर सकती हो. क्लियर? नाउ you are going to look at another activity. Yes, look at this and observe it carefully. Yes. Now, first of all, write down what material is used. Okay. Materials कौन सा use हुआ है? You have to write it. Yes, glass, piece of cardboard. Okay, which you have taken, and you have to observe it carefully. First of all, water is also there, beta. Glass, water, and a piece of cardboard. This is used. And what does this activity show?
What is the result? What is the conclusion of this activity? Yes, tell me this first. Yes. A glass with water and thick cardboard, air exerts pressure. Very good. Air exerts pressure. This shows that air exerts pressure. What you have to do, you have to take water in the glass and fill the water up to the brim. पूरा भरा होना चाहिए water. Okay, now put a piece of cardboard over the glass, turn it upside down, okay, and remove your hand from the cardboard like this. You will see the cardboard will not fall. वो cardboard नीचे नहीं गिरेगा. Why? Because air exerts pressure. Although ऊपर से वो पानी भी pressure डाल रहा है, but even then cardboard नीचे नहीं गिरा because नीचे से air pressure डाल रही है. That's why. Clear? So you have to write conclusion, material required and procedure. प्रोसीजर मीन्स कि आप कैसे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो. जो आपने किया सेम इन योर लैंग्वेज यू हैव टू राइट. इट्स नॉट देयर. यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम. अगर एक दो बार में आपसे ट्राई नहीं भी होता तो नो प्रॉब्लम. ओके, यू कैन ट्राई इट अगेन. ओके, so once more you can try. When you will try it again and again, so you will come to know कि you will be able to do it. बस keep in mind कि आपका जो एक्टिविटी जो आप कर रहे हो इसमें पानी जो है ऊपर तक भरा होना चाहिए. एंड क्विकली यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. एंड this is all about science today. Now over to Pratibha ma'am. Yes, Pratibha ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you. Okay, beta. So once again, very good morning. So today we are going to start the work which I sent you in the morning. I hope कि किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा वो वर्क क्या भेजा गया था, right? So it was regarding verb, kinds of verbs, right? तो बेटा ये टॉपिक अब आपने ध्यान से समझना है. For that I need your participation also. Okay. So let me share my screen. So आपको तब तक you are to tell me what is a verb. जल्दी से टाइप करो. So this activity is regarding transitive and intransitive verbs, right? तो सबसे पहले you just tell me yes, you tell me what is a verb. Okay, action word, very good. Okay, very good. Doing word, okay. Action word, doing word, okay. ये verbs होते हैं, right? Very good. Okay, चलो ठीक है. आपने अपना आंसर दे दिया? Okay बेटा. Very good. चलो अभी stop now. Very good. You all have given me answer कि जो doing words होते हैं वो verbs होते हैं. क्योंकि अगर हमने kinds करनी है तो first we need to know what is a verb. Okay, what a noun is doing. What a noun or pronoun. Okay बेटा, stop now. बच्चे stop now. Okay. अच्छा, अब इसमें से आप ऐसे करो, मुझे इसमें verbs ढूंढ के बताना जरा. यहाँ पे 3 sentences are given. Okay. अब इसमें से just pick out the verbs. बेटे don't type, stop typing now. आप सिर्फ 1, 2 and 3 लिख के just tell me what are the verbs in these sentences. आपने अभी मेरे को बताया कि verbs क्या होते हैं. Okay, very good. Are playing, तीनों के इकट्ठे बताने बेटा. Are playing, are, ये एक्टिव क्या है? वेरी गुड. विनायक एक्टिव वर्ब है. वेरी गुड. ओके बेटा, एक्टिव वर्ब नहीं एक्टिव एडजेक्टिव है. हाँ जी बेटा, वेरी गुड. ओके, सो इट इज, प्लीज आप लोग yes no का जवाब नहीं दो बेटा, मैं हूँ ये आंसर देने के लिए. राइट बेटे, सो इट इज
आर प्लेइंग फर्स्ट सेंटेंस में, सेकंड में आर और थर्ड में हैव। वेरी गुड। अब ये देख लो, जो आपने मुझे आंसर दिया और जब जो आंसर आपने मुझे पहले दिया था, ये दोनों स्टेटमेंट्स मैच ही नहीं कर रही। आपने मुझे बोला कि वर्ब क्या होता है। नाउ लिसन केयरफुली, लिसन वेरी मच केयरफुली, आई हैव गॉट द आंसर्स, प्लीज लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। नाउ आपने खुद मुझे क्या आंसर दिया था कि वर्ब क्या होता है, डूइंग वर्ड, ठीक है। अब डूइंग वर्ड अगर आप फर्स्ट सेंटेंस देखो, फर्स्ट सेंटेंस में तो डूइंग वर्ड है प्लेइंग, खेलना, आर प्लेइंग हो गया। अब दूसरे में आर, क्या कर रहे हो इसमें, डूइंग का मतलब कोई काम करना। बेटे यस मैम नो मैम मत लिखो बच्चे, ओके ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब कौन सा है यहाँ पे, नहीं है ना। आपने ध्यान से सुना नहीं था, मैंने बार बार आपको बहुत बार पहले भी बताया कि वर्ब क्या होते हैं। ओके ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ओके स्टॉप बेटे। अब आप समझो जरा। अब देखो, वर्ब हमेशा आप गलती करते हो कि वर्ब होता क्या है, तो वर्ब को समझने के लिए ये एक शॉर्ट फॉर्म जो है इसको ध्यान में रखो, इट इज ऐश, ASH, ओके। सो A stands for action, A stands for action। Children are playing football, अब यहाँ पे are playing खेलना, it is an action, ओके A हो गया। नेक्स्ट इज S के लिए इट इज स्टेट, स्टेट का मतलब किसी चीज का होना, उसकी एग्जिस्टेंस होना, ओके। तो दैट इज दे आर वेरी एक्टिव, मतलब वो एक्टिव हैं, उनका एक्टिव होना, कोई एक्शन तो नहीं हो रहा ना, एक्टिव कर तो नहीं रहे हैं कुछ, दे आर, ओके। सो दैट इज स्टेट। एंड थर्ड इज H, हैव, दे हैव अ फुटबॉल, किसी चीज का पाना, पोजेशन होना। सो ASH इज एक्शन, स्टेट एंड हैव। तो वर्ब क्या है, जो हमें एक्शन के बारे में बताता है, किसी चीज के होने के बारे में बताता है, किसी चीज के पाने के बारे में, पोजेशन, कि आई हैव अ फुटबॉल, कि मेरे पास एक फुटबॉल है, ठीक है। सो यहाँ पे अब ध्यान देना, नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर आई आस्क यू कि वर्ब क्या है, तो आपका आंसर सिर्फ एक्शन नहीं होना चाहिए, एक्शन वर्ड नहीं होना चाहिए, ओके। अ वर्ड दैट स्टेट्स अबाउट एन एक्शन, दैट डिस्क्राइब्स अ स्टेट, okay, that tells about a state, or that tells about have possession, that is a verb। कि किसी वर्ड से, किसी भी सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड जिससे किसी काम के करने का, होने का या पाने का पता चलता है, दैट इज अ वर्ब। अब क्या शॉर्ट फॉर्म है, ASH, एक्शन, स्टेट, हैव। डू यू रिमेंबर बी फॉर्म में आपको बताती हूँ हमेशा, बी बताती हूँ हमेशा आपको, बी फॉर्म। तो ये आर क्या है, प्रेजेंट में बी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है, बी लिखो जरा, बी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब जल्दी से, व्हाट इज इट, बी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब, व्हाट इज इट, बी वॉज बीन, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। अब ऐश नहीं लिखी जाओ, वो यहाँ पे लिखा, आपने यहाँ नहीं लिखना, इट इज बी वॉज बीन, ओके। सो बी प्रेजेंट में, वॉज पास्ट में एंड बीन पास्ट पार्टिसिपल, ओके। अब बी जब प्रेजेंट में यूज होता है, दैट इज एम आर। बेटे आपको ये किसने ये सारा कुछ यहाँ टाइप करने के लिए कहा है बेटे, डोंट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज योर टाइम इन लिसनिंग, जो चीज समझाई जा रही है, ओके। तो ये ASH इसको याद रखना है, ओके बेटा। अच्छा अब पहले ना फटाफट मुझे ये क्वेश्चंस के मुझे जरा जवाब देना, आपने टाइप करना है ये आंसर्स, यू कैन नोट डाउन दीज आंसर्स आल्सो इन योर नोटबुक। विच फ्रूट डू यू लाइक, आई थिंक आई एम नॉट म्यूटेड, No, you are not muted at all. यस। हाँ जी बेटा, विच फ्रूट डू यू लाइक, okay, I like mango, I want proper sentence, I don't want any one word answer, I like mango, okay okay, very good very good, ठीक है जी बेटा। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई डोंट वांट एनी वन वर्ड आंसर, आई लाइक मैंगो, ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। ये आई होप कि आपने अपनी नोटबुक पे भी फटाफट ये एक छोटा सा सेंटेंस नोट कर लिया होगा, ओके गुड वेरी गुड।
अच्छा, सेकेंड सेंटेंस, व्हाट डिड यू बाय ऑन योर बर्थडे? व्हाट डिड यू बाय ऑन योर बर्थडे? ओके, अब देखो ये आई थिंक इट इज रूहानी। रूहानी बेटा, क्वेश्चन में डेड है, आंसर क्या आएगा? आई बॉट अ ड्रेस। वेरी गुड, ऐसे आएगा, ठीक है। आई बॉट अ बाइसिकल, बाइसाइकिल नहीं होता, इट इज बाइसिकल। आई बॉट अ न्यू फ्रॉक, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ भी, आई बॉट अ लैपटॉप, सही में, दैट इज नीड ऑफ आर, ओके वेरी गुड। आई बॉट अ वॉच, वेरी गुड वेरी गुड, ओके जी, ओके, आई गॉट द आंसर। सो ये आंसर भी आप अपनी नोटबुक पे लिख लो बेटा। अच्छा, टॉय गन, अभी भी टॉयज के साथ खेलते हो, वेरी गुड, नेवर लेट द चाइल्ड डाई इन यू, गुड गुड वेरी गुड। ओके, आई बॉट अ बैडमिंटन रैकेट, ओके जी, ठीक है। चलो, सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड का लिखो, हु हेल्प्स यू इन डूइंग योर वर्क? हु हेल्प्स यू इन डूइंग योर वर्क? अगेन, proper sentence, no one word answer. Who helps you in doing your work? Okay, my mother helps me. Okay, okay जी, my mother helps me, my mother and brother helps me. मदर एंड ब्रदर दो हो गए, तो फिर हेल्प्स आएगा, हेल्प मी। ओके, माय मॉम हेल्प्स मी, ओके जी, ओके, ठीक है, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये तीनों आंसर सबने लिख लिए अपनी नोटबुक पे? फटाफट नोटबुक पे भी ये तीनों आंसर्स लिखो। आपने साथ साथ में काम करना है, तभी ये चीज़ समझ आएगी आपको। आपने नोटबुक पे सब कुछ नोट करते जाना है साथ साथ में बेटा, तभी ये सब समझ आएगा आपको। ओके बेटे, स्टॉप नाउ, स्टॉप स्टॉप। ओके, चलो, अब मैंने भी ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेट मी टेल यू माय आंसर्स आल्सो। अच्छा, अब मेरा क्या आंसर है कि आई लाइक एप्पल, मुझे तो एप्पल बड़ा अच्छा लगता है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ओके, सो इवन देन वी हैव टू गो टू डॉक्टर। ओके बेटा, हाँ जी बेटा। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या था? What did you buy? So I bought a new dress. I also bought a new dress on my birthday. Okay. And third, my answer is my son helps me. मुझे कौन हेल्प करता है? मेरा बेटा हेल्प करता है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें मुझे जल्दी समझ नहीं आती, राइट? ओके बेटा। सो अभी हमने क्या करना है, अब फर्स्ट क्वेश्चन था विच फ्रूट डू यू लाइक। ओके, सो अगर मैं सिर्फ ये बोल दूं कि आई लाइक, this was the question, which fruit do you like? If I say I like, so will it give complete meaning? Will it tell you complete meaning? मैंने वर्ब तो बोल दिया, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, बट अगर yes, it is not conveying complete meaning. I'm saying I like, आप बोलोगे क्या मैम, what do you like? So then if I say I like apple, तब ओके ओके ठीक है मैम, हाँ अच्छा आपको एप्पल पसंद है, then the thing is clear to you. ओके, सो लाइक पे जब मैं रुक गई, आई लाइक, तो क्वेश्चन बना व्हाट, क्या पसंद है आपको? सो इट मीन्स ये जो वर्ब है लाइक, इट इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट, ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। सो व्हाट डज इट नीड? इसको किस चीज की जरूरत है बेटा? इसको चीज, कौन सी चीज की जरूरत है? इस वर्ब को, लाइक वर्ब को अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए किसकी जरूरत है? यस, एक एप्पल या किसी फ्रूट के नाम की, और जो वो फ्रूट का नाम है दैट इज अ नाउन। बट यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो आई इज सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, एंड एप्पल इज ऑब्जेक्ट। ओके, सो इट मीन्स ये एक ऐसा वर्ब है जिसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ओके, सो ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब जो ट्रांजिट, जो मूव करता है अपनी मीनिंग के लिए, अगले वाले पे रिलाई करता। ओके, सो इट इज, ये लाइक जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ओके जी, नेक्स्ट इज आई बॉट। क्या खरीदा बर्थडे पे? आई बॉट। क्या खरीदा भाई, बताओ तो सही। सो आई बॉट अ न्यू ड्रेस। सो अगेन, बॉट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। आंसर क्या आया आप पूछोगे फिर, क्वेश्चन इज व्हाट। सो व्हाट का आंसर इज अ न्यू ड्रेस, एक नई ड्रेस खरीदी।
बेटा एक चीज का ध्यान रखना है, जब आपने ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है ना, तो ऑब्जेक्ट के साथ जो भी आर्टिकल यूज होता है उसको भी हम, जो भी एडजेक्टिव यूज होता है उसको भी इंक्लूड करते हैं साथ में हम। यहाँ पे आपने सिर्फ ड्रेस नहीं लिखना, अ न्यू ड्रेस। ओके ओके बेटा। सो यहाँ पे अगेन बॉट अपने आप में कंप्लीट नहीं है, आई बॉट, क्या भाई क्या खरीदा, अ न्यू ड्रेस, ओके ठीक है। सो अ न्यू ड्रेस जो है दैट इज गिविंग आंसर ऑफ व्हाट, वो व्हाट हमको पूछना पड़ा क्योंकि बॉट तक मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। सो इट मीन्स, एक ऐसा वर्ब जिसको अगेन अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वो कौन सा है, ट्रांजिटिव वर्ब। अब आपने ये देखा होगा कि पहले वाले दोनों सेंटेंसेस में एप्पल जो है दैट इज नाउन, अ न्यू ड्रेस क्या है, दैट इज ऑल्सो नाउन। अब थर्ड पे आते हैं, माई सन हेल्प्स मी। Now, whom my son helps whom? किसकी हेल्प करता है? My son helps whom? मेरा बेटा किसकी हेल्प करता है? मेरी। ठीक है, सो यहाँ पे whom का आंसर मिल गया। तो अगेन हेल्प्स किसकी मैम? मेरी। ओके, सो इट मीन्स कि हमको ये जो तीनों वर्ब्स हैं लाइक, बॉट एंड हेल्प्स, इन तीनों को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। फर्स्ट वाले दोनों सेंटेंसेस में ये जो ऑब्जेक्ट था ये क्या था, इट इज अ नाउन। बट थर्ड सेंटेंस में इफ यू सी, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है दैट इज अ प्रोनाउन। सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड कि जब एक वर्ब अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, उसको अपने मीनिंग के लिए किसी और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, दैट वर्ब इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। और वो जो ऑब्जेक्ट होता है दैट इज आइदर अ नाउन और अ प्रोनाउन। इज इट क्लियर? Is it clear? Just type yes if it is clear to you. Just type yes if it is clear to you. Very good, very good. I want this thing. Yes, beta. Yes, very good, very good. Beta, ये typical सा topic है. You need to understand very much carefully. That is, I am not telling you to type anything. Okay, बेटे जी. Very good, very good, good. अच्छे बच्चे मेरे. Very good. Okay, बेटा. So ये तीनों क्या हैं? Like, bought and helps. ये तीनों क्या? All these three are transitive verbs. Okay, हाँ जी बेटा। नेक्स्ट चलो, अब ये वाले क्वेश्चंस के आंसर दो मुझे जरा। व्हाट आर यू डूइंग? अभी आप क्या कर रहे हो? टेल मी, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? यशु बेटा, जो आपने अभी किया था ना ये दोबारा नहीं करना। ओके ओके, यू आर अटेंडिंग। ओके ठीक है, ठीक है। ओके, if you are to give answer without any object, so I am studying. Very good, I am studying. Okay, ठीक है। Are you listening or not? Yes bete, are you all listening or not as I am speaking and you are sleeping? Okay, and you are listening. Okay, I am listening. Okay, very good, very good. ओके ओके ठीक है बेटा, आई एम लिसनिंग। चलो ये आंसर हम एज्यूम करके चलते हैं, आई एम लिसनिंग। ओके बेटा, सेकंड, वेयर आर यू सिटिंग? अच्छा, आई एम सिटिंग ऑन माई स्टडी टेबल। स्टडी टेबल के ऊपर बैठे हो आप? बेटे टेबल के ऊपर नहीं बैठते कभी। ओके, आई एम सिटिंग इन माई रूम। ओके, आई एम सिटिंग ऑन द बेड। ओके जी, आई एम ओके ओके। हाँ जी, कहाँ पे बैठे हो बेटे? वेयर आर यू सिटिंग? In the classroom? I don't think you are in the classroom. I am sitting in my room. I'm sitting in my room. सारे room. अच्छा, I am sitting on the chair. Okay, but I am sitting in the chair. Okay, बेटा at the sofa नहीं होता, सोफे के ऊपर ही हम बैठते हैं। हम सोफे के ऊपर ही बैठते हैं, बट टेबल के ऊपर नहीं। टेबल के लिए हम यूज करते हैं at the table. Okay, okay ठीक है जी। I am sitting on my chair, in my chair, on my bed. Okay, very good. Third,
सो हाउ आर द स्टूडेंट्स राइटिंग, स्टूडेंट्स कैसे लिख रहे हैं? आप लोग फटाफट, हाँ नीटली लिख रहे हो। अभी यहाँ पे तो नीटली तो गंदा पता नहीं चलेगा, ये जल्दी जल्दी लिख रहे हो कि धीरे धीरे लिख रहे हो? कैसे लिख रहे हैं स्टूडेंट्स आर राइटिंग? हाउ आर दे राइटिंग? आर दे राइटिंग जल्दी में? मैं वर्ड नहीं बोलूंगी, मैं आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक दैट वर्ड, नो, राइटिंग फास्ट। और क्या हो सकता है विद एल वाई? यस, द स्टूडेंट्स राइट क्विकली नहीं बेटा, आर राइटिंग है, द स्टूडेंट्स आर राइटिंग क्विकली। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। द स्टूडेंट्स आर राइटिंग क्विकली, आर राइटिंग स्लोली। चलो ठीक है, मेरे जैसे होंगे जिनकी टाइपिंग स्पीड कम होगी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ठीक है बेटा। चलो अभी मैं अपने आंसर्स भी बता दूं आपको। सो माई आंसर्स आर आई एम स्पीकिंग, यस, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, ठीक है। स्टॉप बेटे, स्टॉप, डोंट टाइप एनीथिंग। सो इट इज आई एम स्पीकिंग। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन था वेयर आर यू सिटिंग? आई एम सिटिंग इन अ चेयर। नाउ आप बोलोगे बेटे बेटे प्लीज 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 डोंट टाइप सो मच बेटे, स्टॉप नाउ, नाउ लिसन केयरफुली, अब समझने वाली चीज है। ओके, नाउ आई एम सिटिंग इन अ चेयर। अब मैंने इन क्यों बोला? आई होप कि आपको पता है डिफरेंस ऑन अ चेयर और इन अ चेयर में क्या होता है। बेटा जिस चेयर की आर्म्स नहीं होती, आर्म रेस्ट होता है ना चेयर में, जिन चेयर्स की आर्म रेस्ट नहीं होता उसके लिए हम ऑन द चेयर बोलते हैं, और जिस चेयर की आर्म्स होती हैं, आर्म रेस्ट होता है, उसको हम इन अ चेयर बोलते हैं, ठीक है। सो आई एम सिटिंग इन अ चेयर। ओके, एंड द थर्ड वन इज द स्टूडेंट्स आर राइटिंग क्विकली। वेरी गुड, देखा आपकी तारीफ कर दी मैंने। अच्छा, अब अगर इसको ध्यान से देखें, अब क्या है कि आई एम स्पीकिंग, इज इट सेल्फ सफिशिएंट? इसको किसी और वर्ड की जरूरत है? आई एम स्पीकिंग को किसी और वर्ड की जरूरत है, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है? ये अपने आप में मीनिंग क्लियर कर रहा है या नहीं कर रहा? यस, इट इज मेकिंग द मीनिंग। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अच्छी बात है जी, बोलते जाओ, हम सुन रहे हैं। ओके, सो इट इज आई एम स्पीकिंग। इट मीन्स कि ये एक ऐसा वर्ब है जिसको अपना मीनिंग इसका अपने आप में ही क्लियर है, इसको किसी भी और वर्ड की जरूरत नहीं है अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए। ओके, नाउ स्टॉप टाइपिंग बेटे, लिसन लिसन बच्चे, लिसन। ओके, अब आपको ये पता चल गया आई एम स्पीकिंग है, तो ये क्या है? ये एक ऐसा वर्ब है जिसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। नाउ सेकंड सेंटेंस, नाउ आई एम सिटिंग। अगर मैं सिर्फ वर्ब तक रुक जो आई एम सिटिंग, तो इज इट कन्वेइंग कंप्लीट मीनिंग? यस, इट इज कन्वेइंग, मैं बैठी हूँ। अब आगे मैं जो मर्जी करती जाऊँ कि मैं कहाँ पे बैठी हूँ, क्यों बैठी हूँ, दैट कैन बी रिटन। ओके, कैसे बैठी हूँ? आई एम सिटिंग कंफर्टेबली, ये भी हो सकता है। बट वर्ब तक अगर हम रुके तो इट इज मेकिंग कंप्लीट मीनिंग। अगेन, this verb doesn't need any other object to make its meaning clear. Okay, now third sentence पे आते हैं, the students are writing quickly. Now again, अगर मैं quickly word नहीं भी बोलूं, the students are writing, very good, I appreciate all, जो लिख रहे हैं I appreciate them, कि students लिख रहे हैं, it is very good. So again, आर राइटिंग, ये अपने आप में कंप्लीट है। स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स आर राइटिंग, बस यहां तक रुक जाओ। यस, इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। सो ऐसे वर्ब्स, अब इनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ना, इनको कोई भी नाउन या प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव के एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। ट्रांजिटिव को क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए। इनट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, यो अपने आप में ही मीनिंग पूरा कन्वे कर रहा है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। एक चीज और नोटिस करो, सेकेंड सेंटेंस में देखो, आई एम सिटिंग, इसके बाद इन यूज किया गया। इन क्या होता है बताना जरा, जस्ट टेल मी, इन क्या होता है? इन वर्ड हमने पढ़ा हुआ, कहीं ना कहीं तो कुछ पढ़ा ही है। इन होता क्या है? विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट? ओके, लेट मी सी कितने बच्चों को पता है। ओके 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 ओके, ठीक है जी, वेरी गुड, इट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, वेरी गुड। सो इन क्या है? एक प्रेपोजिशन है। अब
एक और टिप होता है, वो ये है कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, वो इट मे हैव, इट इज नॉट कंपल्सरी। अब ऊपर वाला भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, वो अपने आप वहां तक कंप्लीट है, ओके, तो उसके बाद में कुछ नहीं है, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, ओके। तो सेकंड वाले में क्या है कि वर्ब के बाद प्रेपोजिशन भी हो सकती है, कंपल्शन नहीं है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन भी हो सकती है वर्ब के बाद, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक प्रेपोजिशन भी हो सकती है। नाउ लुक एट थर्ड सेंटेंस, द स्टूडेंट्स आर राइटिंग क्विकली। अब ये बताओ कि क्विकली क्या है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट। अभी तक हमने ये टॉपिक फिफ्थ में नहीं किया, बट यू हैव डन दिस टॉपिक इन थर्ड एंड फोर्थ, ओके ओके। यस, इट इज एडवर्ब, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड जो वर्ब के बारे में बता रहा है कि काम हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ओके। सो इट इज एन एडवर्ब। तो अब क्या है कि जो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद इमीडिएटली बाद एक प्रेपोजिशन भी हो सकती है या उसमें एक एडवर्ब भी हो सकता है इमीडिएटली उसके बाद। तो दैट इज ऑल्सो अ हिंट फॉर यू कि अगर किसी वर्ब के इमीडिएटली बाद प्रेपोजिशन या एडवर्ब है तो वो इंट्रांजिटिव है, ओके जी, इज इट ओके। तो ये इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सो इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, ओके। नाउ अब क्विकली हम एक रीकैप कर लेते हैं कि हमने क्या डिफरेंस किया है। सो व्हाट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, उसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और वो जो ऑब्जेक्ट होता है दैट इज आइदर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये ध्यान देना है आपने कि जो वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा या तो वो नाउन होता है या वो प्रोनाउन होता है, ओके ओके बेटा। नाउ द सेकेंड थिंग इज sorry, for intransitive, a verb that does not need an object to complete its sense। एक ऐसा वर्ब जिसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर देता है वो वर्ब। दैट वर्ब इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। एंड द वर्ब मे हैव, ये इंट्रांजिटिव वर्ब मे हैव हो सकता है, नॉट कंपल्सरी। इसमें हो सकता है क्या है? एन एडवर्ब और अ प्रेपोजिशन आफ्टर इट, ओके। और उसमें जो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में एक एडवर्ब हो सकता है या एक प्रेपोजिशन हो सकती है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट अ कंपल्शन कि आप बाद में बोलो मैम आपने बोला था। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट मे हैव, हो सकता है, ओके। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, ओके। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। बेटा अगर आपको कुछ और पूछना है इसके बारे में, that you can ask me, okay? Yes bete, so these